89.1 रेडियो 4 FM पर आप है सचनीत के साथ फिलहाल लाइव ऑन द फोन लाइंस विद मी इज स्पेशलिस्ट विजिटिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन एट रैक हॉस्पिटल. ही इज नन अदर देन पद्मश्री यश गुलाटी. एंड सर, आपके बारे में आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी नो अबाउट यू. आई थिंक यू ऑलरेडी ऑपरेटेड ऑन वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्रिकेट प्लेयर्स अनिल कुंबले. I did, yes. And apart from that, one of our very own former prime ministers of India, उन पे भी आपने ऑपरेट किया है. बिल्कुल सर. जी. So it is an honor to have you on the show. Welcome. Well, it's a pleasure. Yeah. So the first question for you is, what are the common causes of back pain? देखिए, जो कमर का दर्द है या बैक पेन है, इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स व्हिच अफेक्ट्स द ह्यूमन काइंड, बिकॉज 8 out of 10 पीपल विल एक्सपीरियंस एटलीस्ट वंस इन लाइफ टाइम. तो इतना कॉमन है कि हर आदमी हो या औरत हो, कोई भी हो, जिंदगी में कभी ना कभी कमर दर्द से जरूर प्रभावित होंगे. और इसका सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है, सबसे इम्पोर्टेंट कॉज जो है, वो है बैड पॉस्चर. बैड पॉस्चर, ओबेसिटी. और अब तो ये भी प्रूव हो गया कि जो लोग ज्यादा स्मोक करते हैं, हैवी स्मोकर्स ऑल्सो हैव इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ बैक पेन. और एक बड़ी मजेदार बात ये है कि जो वर्किंग लोग हैं, लेबर क्लास पीपल, दोज हु आर डूइंग एक्टिवली इन्वॉल्व इन working, they have less incidence of back pain than white collar workers. So there is a lesson in that people who are less active, people who are into luxurious lifestyle are more prone to have what is known as a mechanical back pain. That is pain related with activity. आप सारा दिन काम करते हैं, फिर दर्द हो जाती है, आप थोड़ा आराम करते हैं, ठीक हो जाती है. This is mechanical back pain. The other type of back pain is non-mechanical back pain, which is even more serious. For example, which may be associated with symptoms like fever. It may be present all the time, or the pain may be radiating down to the leg. Now, that's a more serious type of back pain. What is known as a non-mechanical back pain, and this kind of back pain, अगर किसी को है तो should consult the doctor immediately. Mechanical type of back pain related to activities is although much more common, less serious, and it is because of our bad posture, obesity, etc. And this is a kind of pain which is though more common, it can be treated and prevented. And how do you prevent these back pains, sir? As I mentioned even in my opening remark, that the most important thing which I can tell people in preventing back pain is activity. Doing your exercises, doing yoga, going for morning walks, and having good posture. For example, in office places, good ergonomics. For example, chair height, the way you put your computer in front of you, the way you work. I mean, if you are white collar worker, you work sitting all day, then it's better to take breaks in between. 1 घंटा कंप्यूटर पे बैठ के उठ जाइए, चलिए, थोड़ा अपने आप को स्ट्रेच करिए, फिर आगे काम कर लीजिए लगातार. और जो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल चेयर्स हैं, दे आर नॉट गुड. आप स्लाउचिंग कर रहे हैं चेयर के अंदर बैठ के, जो एग्जेक्टिव्स हैं, दे आप देखेंगे थोड़ी देर में आप सी शेप में हो जाते हैं बैठे बैठे, और वो स्पाइन के ऊपर बहुत खराब असर करता है. इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट दैट सिटिंग कॉजेज मोर स्ट्रेस ऑन स्पाइन देन स्टैंडिंग. तो मैं तो कई बार जो सीनियर एग्जेक्टिव्स हैं, बाकी लोग हैं जो सारा दिन बैठ के काम करते हैं, उनको ये भी एडवाइस करता हूँ कि आप एक स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म बना लीजिए, उठ के चलिए, उठ के काम करिए. और मान लीजिए आपने अपने किसी जूनियर को काम बोलना है, उठ के चले जाओ उनके पास. फाइंड अ रीजन टू गेट अप एंड वॉक rather than sitting the whole day. And most important thing is that you must be involved in some recreational activity which involves activities of the back. For example, you play something, play badminton, play tennis, go for morning walks, go for swimming. All these things will be very good for prevention. मैं अक्सर ये कहता हूँ कि बैक पेन को प्रिवेंट उस समय करना है जब बैक पेन नहीं है. जब बैक पेन शुरू हो जाती है, क्रॉनिक बैक पेन, then it becomes a problem. So, अक्सर मैं ये कबीर का दोहा मुझे याद आता है कि दुख में सब सिमरन करें, सुख में करे न कोई, सुख में जो सिमरन करे तो दुख काहे कोई. जब बैक पेन नहीं है उस समय आप करिए अपनी एक्सरसाइजेस, आपकी बैक पेन प्रिवेंट हो जाएगी. क्या बात है सर. एंड देयर इज वन मोर कॉमन एलिमेंट व्हिच इज कॉल्ड जॉइंट पेन. तो इसके कॉमन कॉजेज क्या हैं? देखिए, जो जॉइंट पेन है, एक तो जॉइंट पेन होती है जो ग्रोइंग एज के कारण होती है. देयर इज नथिंग वन कैन डू अबाउट इट. इफ यू आर ग्रोइंग ओल्ड, जस्ट लाइक यू लूज हेयर, जस्ट लाइक हेयर बिकम ग्रे, सम जॉइंट degeneration will occur, some joint pain will happen, but this is something you can't help. But what you can help is you can avoid becoming obese. You can avoid putting too much weight on the same degenerating joint. So that way you can prevent pain to a large extent. Also, the other type of back pain in which is maybe जो rheumatoid arthritis के कारण हो सकती है, या और तरह की इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के कारण हो सकती है, उनको जल्दी रिकग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि वो जो जॉइंट पेन है, वो जो एजिंग जॉइंट पेन से काफी डिफरेंट है, और उनको अगर हम
जल्दी डायग्नोज कर लेते हैं तो उनकी खास तरह की दवाइयां हैं जिनको हम डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स बोलते हैं, उनको देने से उन जोड़ों का डिस्ट्रक्शन काफी हद तक हम बच सकते हैं उनसे, क्योंकि ये बीमारी केवल जोड़ों को नहीं प्रभावित करती है, ये और सिस्टम को भी प्रभावित करती है और बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको जल्दी डायग्नोज करना। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके हाथों में छोटे जोड़ों में दर्द होनी शुरू हो जाती है, मॉर्निंग में उठते हैं स्टिफनेस होती है, स्वेलिंग होती है और काफी जोड़ प्रभावित होते हैं, तो प्लीज अपने डॉक्टर को मिल लें, चेक कर लें कि कहीं रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं है, क्योंकि ये अर्ली स्टेज में है तो उसको बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया जा सकता है और जोड़ के डिस्ट्रक्शन को बचाया जा सकता है। बिल्कुल। ऑलराइट, स्टे ट्यून रहिए टू 89.1 रेडियो 4 FM। आगे पद्मश्री डॉक्टर यश गुलाटी हमें डिटेल में बताएंगे कि जॉइंट पेन से जो है कैसे डील किया जाए। दिस इज 89.1 रेडियो 4 FM। मेरा नाम है सचनीत। वेलकम बैक टू 89.1 रेडियो 4 FM। मेरा नाम है सचनीत एंड लाइव ऑन द फोन लाइंस विद मी इज पद्मश्री डॉक्टर यश गुलाटी। सर, इट्स एन ऑनर हैविंग यू। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, मैं वापस यही कहूंगा कि इट्स एन ऑनर हैविंग यू। सर, हम जॉइंट पेन के बारे में बात कर रहे थे एंड अगला सवाल तो यही होता है कि हाउ टू डील विद जॉइंट पेन। थोड़ा आप अगर बराबर बता सकें। देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि जॉइंट के जो प्रॉब्लम है वो कितनी आगे तक बढ़ चुकी है, कि क्या अर्ली स्टेज है, क्या उस जॉइंट के अंदर, मान लीजिए कई बारी अंदर जो हमारे फॉर एग्जांपल नी जॉइंट है उसमें अंदर मिनिस्कस होता है, क्या उसका टियर हो गया, MRI से पता लग जाएगा। तो उसको अगर वो स्टेज है तो छोटी सी जो डे केयर सर्जरी है, ऑर्थोस्कोपी सर्जरी, उससे करके उसको हम ठीक कर सकते हैं। कि क्या अभी वो स्टेज पहुंची नहीं है, क्या बहुत अर्ली स्टेज है, तो उसको तो हम अपना वेट रिडक्शन, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, स्विमिंग इत्यादि से ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो कुछ ऐसे पोस्चर्स को अवॉइड कर सकते हैं जैसे स्क्वाटिंग, नीलिंग इत्यादि ना करें। मान लीजिए आपको प्रेयर करनी है तो आप जमीन पे घुटने पे टेक के ना करके चेयर पे बैठ के भी प्रेयर कर सकते हैं, दैट इज क्वाइट ओके। तो इन चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि स्टेज उससे भी आगे बढ़ गई, मान लीजिए कि दर्द काफी ज्यादा बढ़ गई है, एक्सरे कराते हैं तो उसके अंदर पता लगता है कि जॉइंट स्पेस ही खत्म हो गई है, या इवन रूमेटॉइड आर्थराइटिस जॉइंट काफी डिस्ट्रक्शन हो गया और आपको लगातार दर्द रहती है, तो उस स्टेज में अगर पहुंच गए हैं कोई, स्पेशली इन लेटर एज ग्रुप आफ्टर द एज ऑफ 50-60, then we may need what is known as a joint replacement. अगर hip joint involved है तो hip replacement, knee joint involvement है तो उसकी knee replacement. Fortunately अब जो ये रिप्लेसमेंट सर्जरी है इट इज कम ऑफ एज। अब इतने अच्छे अच्छे जॉइंट अवेलेबल हैं, हम लोग जो करते हैं, मान लीजिए नी रिप्लेसमेंट किया, यू कैन एक्सपेक्ट दैट जॉइंट रिप्लेसमेंट टू लास्ट यू फॉर 20-25 years एंड वेरी गुड जॉइंट्स आर अवेलेबल। यू कैन वॉक ब्रिस्कली आफ्टर दैट, बट यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल कि आप उतना वेट कम रखिए और क्रॉस लेग करके ना बैठिए, एंड दैट जॉइंट रिप्लेसमेंट कैन लास्ट यू फॉर many years and you can live a pain free life. So there is no need to get scared. Results are very good, but it's very important that the patient has to earn joint replacement. इस नहीं है कि थोड़ी सी दर्द पे ही joint replacement शुरू हो जाओ। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि थोड़ी दर्द है जी, मेरा joint replace कर। No, it has to be significant pain, and as I say, patient has to earn his or her joint replacement, be it hip, knee or shoulder or whatever joint, And so now we're going to talk about sports injuries. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं what are the most common types of sports injuries today? Fortunately, even in Asian population, sports is becoming more and more common. Be it UAE, be in India or other, be it Pakistan, people now want to play. People want to have not only recreational sport, but a lot of people are involved in professional sports. For example, cricket is almost religion in people, places like India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. So it's very common, people want to play. Now there are 2-3 different types of sports injuries. One is what is known as in the category of overuse sports injuries. That doesn't mean that you're playing too much. That may mean that you're not playing right. You're not warming up, you're not warming down, you're not hydrating yourself, and you can have different type of muscle pulls, muscle strains, or what is known as enthesitis. For example, hamstring pulls, hamstring ruptures. These can become very disabling pains. So this kind of pain, what in the category of overuse injuries, stress fractures, etc., can be prevented by proper techniques, by proper warming up, warming down, by hydrating yourself, and these injuries can be prevented. Other type of injuries are direct injuries. For example, twisting injuries in the knee when you're playing tennis or you're playing squash, or even by cricket, you can have twisting injury in the knee. You can have what is known as rupture of the cruciate ligament in the knee, what connects the two bones, जो एक tibia और femur unite करता है ligament, उसकी इंजरी हो सकती है। या knee joint के अंदर जो हमारा meniscus होता है,
which is a C-shaped structure which acts like a cushion की तरह काम करता है नी जॉइंट के अंदर, वो रप्चर हो सकता है। तो इन सब चीजों का अगर आपका इंजरी हो गया है तो आजकल तो बड़ी अच्छी तरीके हैं डायग्नोज करने के। फॉर एग्जांपल MRI है, उससे पता लग जाएगा कि मेनिस्कस इंजरी हुई कि नहीं, क्रूशियल लिगामेंट इंजरी हुई कि नहीं हुई। उसके अंदर यदि ऐसा है तो आप मिनिमली इन्वेजिव तरीके हैं, जैसे छोटी सी 2 पंक्चर से आर्थ्रोस्कोपी करके उनको ठीक किया जा सकता है। मेनिस्कस इंजरी है तो उसको ट्रिम किया जा सकता है। क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी है जो फुटबॉलर्स में बहुत कॉमन है, उसके अंदर हम आर्थ्रोस्कोपी से नया लिगामेंट डाल सकते हैं और आफ्टर 6 to 8 months people can play the game again. So it's very important that we keep an eye on these, and if there is a problem we deal with them early rather than leaving it too late. Similarly shoulder injuries है, शोल्डर में भी अगर मान लीजिए जैसे बेसबॉल प्लेयर है या क्रिकेट प्लेयर है या फास्ट बॉलर है या थ्रोइंग इंजरी, फॉर एग्जांपल अंदर जो लिगामेंट, वो जो अंदर स्ट्रक्चर होता है, कैप्सूल फट जाता है, वो भी हम आर्थ्रोस्कोपी से उसको ठीक कर सकते हैं उसको। और अगेन इफ यू डू प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर वार्मिंग अप, वार्मिंग डाउन, देन दिस इंजरीज कैन आल्सो बी प्रिवेंटेड। एब्सोल्युटली सर, एक और ब्रेक लूंगा मैं। ऑलराइट, स्टे ट्यून्ड, रेडियो 89.1 रेडियो 4 FM। आगे पद्मश्री डॉक्टर यश गुलाटी से हम बात करेंगे अबाउट मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज। वेलकम बैक टू 89.1 रेडियो 4 FM। मेरा नाम है सशनीत एंड फिलहाल लाइव विद मी ऑन द फोन लाइंस इज पद्मश्री डॉक्टर यश गुलाटी। एंड सर फाइनली वील रैप अप द इंटरव्यू। आप से जो हम आखिरी सवाल पूछने वाले हैं वो ये है कि कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज? देखिए ऐसा है कि अब जो टेक्निक्स बढ़ती जा रही हैं, ये देखो पहले जमाने में हवाई जहाज कैसे उड़ता था, सिर्फ प्योर विजन से, अब कैसे उड़ता है और अब कैसे लैंड करता है, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग। तो ऑल दीज थिंग्स हैव नाउ बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू ऑर्थोपेडिक सर्जरी, बी इट स्पाइन सर्जरी, बी इट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, और बी इट keyhole surgery for joint. For example, now for sports injuries we have what is known as arthroscopic surgery through 2 small little nicks in which only we have to give only 2 stitches. You can do the whole surgery. So this is minimally invasive surgery, arthroscopic surgery. Similarly for spine surgery, now we have minimally invasive surgery. For example, for slip disc, we can do the whole surgery through a micro technique through about 1.5 to 2 centimeter incision. You can deal with the slip disc, take out the portion which has come out. Patient can actually go home the same evening or the next, start walking the next day. And this kind of spine fixations also can now be done through what is known as a percutaneous method. छोटा सा incision दिया स्किन के ऊपर, उसके थ्रू ही पूरा स्क्रू डाल दिया, उसके थ्रू ही अगर मान लीजिए स्पाइन को हमने फ्यूज करना है, केज डालना है जिसको हम बोलते हैं बिटवीन द 2 बोन्स, ऑल दिस कैन बी डन थ्रू स्मॉल लिटिल इंसिजन, थ्रू नेविगेशन है अब हमारे पास, एज आई सेड, लाइक फॉर द प्लेन एरोप्लेन लैंडिंग और like the GPS system. All this has been incorporated into orthopedic surgery for spine and joints, and this has made सर्जरी मच सेफर। हम लोग छोटे इंसिजन के थ्रू कर सकते हैं। जब नेचुरली छोटे इंसिजन के थ्रू करते हैं तो जो टिश्यू डैमेज होता है, जो बाकी स्ट्रक्चर्स है, उसका डैमेज कम होता है और उसका रिहेबिलिटेशन है वो भी पेशेंट का काफी क्विक हो जाता है। तो इससे ये सब फायदे जो हैं नई टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आज के पेशेंट को हम लोग ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, स्पाइन सर्जरी में, जॉइंट रिप्लेसमेंट में और स्पोर्ट्स इंजरीज के अंदर हम लोग दे पा रहे हैं। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच एंड वी गोना रैप अप द इंटरव्यू ओवर हियर। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो एंड थैंक यू सो मच once again. Thank you very much. Thank you. Take care sir. Bye bye. Thank you. Bye bye. Alright, that was Padmashri Dr. Yash Gulati, visiting specialist orthopedic surgeon at RAC Hospital. And अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं, I think all you have to do is head down to RAC Hospital. मैं भी वहाँ पर गया हूँ. It is a wonderful facility. And जैसे कि आपने हमारी बातें सुनी, Padmashri Dr. Yash Gulati is one of the best and one of the most well-known names in the medical field. This is 89.1 Radio 4 FM. मेरा नाम है सशनीत. A very good evening to all of you.